السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور آج کا جو کلاس ہونے والا ہے بالکل اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک کے لیے نہایت ہی اہم ہونے والا ہے ساتھیوں، کیونکہ ہم کوئی یوٹیوبر نہیں ہیں۔ میں پہلے اردو انوادک کے پوسٹ پہ بحال تھا۔ الحمدللہ میں پرکھنڈ کاریالے امور ضلع پورنیہ میں 1 سال تک اردو انوادک کے پوسٹ پر رہا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ میرا تعلیمی سفر ابھی جاری ہے۔ میں کوئی یوٹیوبر نہیں، لیکن میں آپ کی بھلائی کے لیے چاہتا ہوں کہ کچھ اصطلاحات جو دفتر میں عام طور پہ بولے جاتے ہیں اور قانونی اصطلاحات اور دفتری اصطلاحات کو آج میں آپ لوگوں کے بارگاہ میں لایا ہوں، اس لیے کہ آپ کا بھلا ہو جائے اور آپ اس ویڈیو کو بغور دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ایگزام میں ضرور کوالیفائی کریں گے، چونکہ میں نے اسی طریقے سے تیاری کر کے اردو انوادک کے ایگزام کو جو 2019 میں ویکینسی آئی تھی اس کو پاس کیا، پھر سہایک اردو انوادک دونوں میں کوالیفائی کیا تھا اسی طریقے سے تیاری کر کے۔ امید کہ آپ اس پر دھیان دیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں سیدھے ہم کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ چلیے دیکھیے اردو میں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں جو سرکاری آفس ہے، جو کاریالے ہیں، ان میں عام طور پہ جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر سہایک اردو انوادک اور اردو انوادک میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ اصطلاحات ضرور بنا کر کے لاؤں۔ چلیے دوستو، پہلے کیا ہے بنیادی حقوق؟ کیا ہے بنیادی حقوق؟ یہ بنیادی حقوق کو اردو میں کیا بولا جائے گا؟ مول ادھیکار۔ کیا بولا جائے گا دوستو؟ مول ادھیکار۔ اور مول ادھیکار اگر پوچھ دیا جائے مول ادھیکار کا ہندی میں انواد کیا جائے تو آپ کو بنیادی حقوق ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر بنیادی حقوق پوچھ دیا جائے، چونکہ 40 نمبر کا ہندی سے اردو ہے اور اردو سے ہندی ہے، کل 80 نمبر کا ہوگا جو ہندی اور اردو سے ہوگا۔ تو بنیادی حقوق کا ہندی کیا ہوگا دوستو؟ وہ ہوگا مول ادھیکار۔ کیا ہوگا دوستو؟ مول ادھیکار۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے ناظم الامور۔ کیا ہے؟ ناظم الامور۔ ناظم الامور کو ہندی میں کیا کہا جائے گا؟ پرشاشک۔ پرشاسک۔ کیوں؟ کس کو؟ ناظم الامور کو پرشاشک کہا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا پرشاسنک وبھاگ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں انتظام کیا جاتا ہے، جس میں نظم و نسق ہوتا ہے، وہ ناظم الامور۔ تو ناظم الامور کو ہندی میں ہم کیا کہیں گے؟ پرشاشک۔ کیا ہو دوستو؟ ناظم الامور کو ہم ہندی میں پرشاشک کہیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اصطلاحات ہے بیجا فائدہ اٹھانا۔ کیا ہے ساتھیو؟ بیجا فائدہ اٹھانا۔ بیجا فائدہ اٹھانا، اس کا ہندی کیا ہوگا؟ درپیوگ کرنا۔ اس کا ہندی کیا ہوگا دوستو؟ درپیوگ کرنا۔ اگر درپیوگ کرنا آ جائے تو اس کو ہم اردو میں انواد کریں گے تو بیجا فائدہ اٹھانا۔ چلیے آگے ہے ساقط کرنا۔ کیا ہوگا ساتھیو؟ ساقط کرنا، اس کو ہندی میں ہم کیا کہیں گے؟ نراکرت کرنا۔ نراکرت کرنا۔ نراکرت کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا، ساقط کر دینا۔ ساقط کر دینا، اسے کیا کہیں گے؟ نراکرت کرنا۔ دیکھیے ساتھیو، میں ایک لفظ کو کئی مرتبہ آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ جب بھی ساقط کرنا کا لفظ آ جائے اردو انوادک یا سہایک اردو انوادک میں، تو آپ کو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں کلاس میں ہم پڑھے تھے نراکرت کرنا، ساقط کرنا، نراکرت کرنا، ساقط کرنا، نراکرت کرنا، یعنی ختم کرنا۔ چلیے آگے ہے خاتمہ کرنا۔ کیا ہے دوستو؟ خاتمہ کرنا۔ خاتمہ کرنا کا کیا ہے؟ انت کرنا۔ انت کرنا۔ خاتمہ کرنا کا ہندی میں کیا کہیں گے؟ اسے انت کرنا۔ اور ہے قائم مقام جج۔ قائم مقام جج۔ قائم مقام جج کو کیا کہیں گے؟ کارجکاری نیادھیش۔ کیا کہیں گے ساتھیو؟ کارجکاری نیادھیش۔
कार्यकारी न्यायाधीश को क्या कहेंगे, कायम मकाम जज। एक आदमी जिस ओहदे पे है उसी ओहदे के लिए दूसरे को वो विभाग में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, आर्जी तौर पे उसे अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई तौर पे कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे, कायम मकाम होता है वो उसके। तो कार्यकारी न्यायाधीश को हिंदी में हम क्या कहेंगे साथियों, कार्यकारी, कायम मकाम जज को हिंदी में हम कहेंगे कार्यकारी न्यायाधीश। कायम मकाम जज को हिंदी में कहेंगे कार्यकारी न्यायाधीश। चलिए आगे है इजाफी। क्या है दोस्तों, इजाफी जायद, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, अतिरिक्त। क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे उसे हम अतिरिक्त। चलिए याद रहेगा, इंशाअल्लाह याद करेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, मुलतवी करना। क्या है साथियों, मुलतवी करना। मुलतवी करना को हिंदी में हम क्या कहेंगे, स्थगित करना। क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे स्थगित करना। देखिए आज के क्लास में हम छोटे छोटे इस्तिलाहात को लाए हैं। अब इंशाअल्लाह कभी मुझे फुर्सत मिलेगी तो आपके लिए बिल्कुल एक पैराग्राफ लाएंगे जिसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। उर्दू रहेगा एक पैराग्राफ जिसको हम हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। मुलतवी को स्थगित करना। चूँकि आपको कुछ इस्तिलाहात अगर याद हो जाते हैं तो पैराग्राफ को अनुवाद करना, उसका तर्जमा करना हिंदी या उर्दू में आपको आसान हो जाएगा। तो मुलतवी करना को हिंदी में क्या कहेंगे, स्थगित करना। चलिए आगे चलते हैं, ख़ास खिताब। क्या है साथियों, ख़ास खिताब। ख़ास खिताब को हिंदी में हम कहेंगे विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण किसको, ख़ास खिताब को। ख़ास खिताब को हिंदी में कहेंगे, क्योंकि ख़ास कहते हैं विशेष को, और अभिभाषण मतलब भाषण करना। भाषण करना को खिताब कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारिंदा। क्या है साथियों, कारिंदा। कारिंदा को हिंदी में क्या कहेंगे, अभिकर्ता, यानी काम करने वाले को कारिंदा कहेंगे उर्दू में। काम करने वाले को, अभिकर्ता को हम काम करने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन उसी को थोड़ा अच्छा लफ्ज़ में अगर दे देंगे तो अच्छा लफ्ज़ उसको, अभिकर्ता को कोई बेहतरीन उर्दू दे दीजिएगा आप, उर्दू का लिबास पहना दीजिएगा, तो काफ़ी चेक करने वाला प्रभावित हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा वो आपसे। उसी मुतासिर को क्या कहेंगे हम हिंदी में, प्रभावित होना। मुतासिर होना, प्रभावित होना। प्रभावित होकर आपको अच्छा नंबर दे देगा। क्या करेगा साथियों, अच्छा नंबर दे देगा आपको। सिर्फ उसको प्रभावित कर देना, मुतासिर कर देना है। चलिए कारिंदा को क्या कहेंगे, अभिकर्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीराना साली। क्या है साथियों, पीराना साली। देखिए बहुत ही आसान लफ्ज़ है हिंदी, बुढ़ापा। सभी लोग जानते हैं कि बुढ़ापा ज़ईफ़, बुढ़ापा जो है उम्र दराज को कहें, जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उसे बुढ़ापा को, उम्र को वो पहुँच गया है तो बुढ़ापा कहेंगे। लेकिन उसी को थोड़ा बढ़िया उर्दू दे देंगे हम, उर्दू कर देंगे अनुवाद, पीराना साली। पीराना साली काफ़ी चेक करने वाला मुतासिर होगा, प्रभावित होगा, वो आपको अच्छा नंबर देगा। चलिए ज़रई आमदनी। क्या है साथियों, ज़रई आमदनी। क्या है, ज़रई आमदनी। ज़रई आमदनी को क्या कहेंगे, कृषि आय। ज़रई आमदनी को कृषि आय, क्योंकि ज़रई माने खेती, ज़रई माने खेती करना। खेती करने को क्या कहेंगे, कृषि। आमदनी को क्या कहेंगे हिंदी में, आय। आमदनी को हिंदी में क्या कहेंगे, आय। चलिए आय माने आमदनी, इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ज़रई अराज़ी। क्या है साथियों, ज़रई अराज़ी। ज़रई अराज़ी को हिंदी में क्या कहेंगे, कृषि भूमि। अराज़ी मतलब आप लोग पढ़े होंगे, अर्ज़ के माने ज़मीन, ये अर्ज़ो समा, ये ज़मीन व आसमान। अर्ज़ माने ज़मीन, आसमान माने, समा माने आसमान, तो उसी अर्ज़ी का अराज़ी है, ज़रई अराज़ी। ज़रई माने अभी बताया मैंने आपको, खेती। खेती मतलब कृषि, और अराज़ी मतलब ज़मीन। तो ज़मीन को क्या कहेंगे हिंदी में, भूमि। कृषि भूमि क्या कहेंगे साथियों, कृषि भूमि। चलिए आगे चलते हैं, सालाना मालियाती गोशवारा। क्या है, सालाना। सालाना मतलब वार्षिक, मालियाती मतलब वित्तीय, गोशवारा मतलब विवरण। क्या है साथियों, विवरण, वित्तीय विवरण। सालाना मतलब वार्षिक, मालियाती मतलब वित्तीय, गोशवारा मतलब विवरण।
क्या है साथियों, विवरण। सालाना मालियाती गोशवारा को हिंदी जो है कुछ उर्दू इस्तिलाहात है, उसके हिंदी इस्तिलाहात ये हो जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण, आप इसको याद रखेंगे। देखिए मैं आपको एक लफ्ज़ को कई मरतबा बोलता हूँ, क्योंकि हमारी उर्दू अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारी कमज़ोर हो रही है, अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो उसकी उर्दू कमज़ोर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कई मरतबा एक लफ्ज़ को आपके जहन के तहखाना में बैठाने की कोशिश करूँगा। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए अगला इस्तिलाहात है रद्द किया जाना। ये सब दफ्तरी इस्तिलाहात है, इसको ज़रूरी आप याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब ज़रूर पूछा जाता है। मैं आलतू फालतू नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि मेरे कौम का भला हो जाए। चलिए आगे है साथियों, कल आदम करना क्या है दोस्तों, कल आदम। देखिए थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ तो क्या हो गया, कल आदम करना, कल आदम करना, कल आदम करना ऐसे होगा, कल आदम करना। चलिए कल आदम करना मतलब रद्द किया जाना, ये गलत है। क्या साथियों, इसी को हम कल आदम ऐसे लिखेंगे, कल आदम करना ऐसे लिखेंगे, रद्द किया जाना। बिल्कुल ये सब है, रद्द किया जाना, ऐसा नहीं कि ख़त्म कर देना, बल्कि इसको और अच्छे से लिख दें, कल आदम कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तालीम पाने का हक, तालीम पाने का हक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम, शिक्षा पाने का अधिकार। क्या कहेंगे साथियों, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा पाने का अधिकार। तालीम पाने का हक मतलब शिक्षा पाने का अधिकार। चलिए आगे है रियासतों की तंजीम जदीद, रियासतों की तंजीम जदीद। देखिए कितना मतलब कितना भारी लफ्ज़ है, रियासतों की तंजीम जदीद। तंजीम क्या कहेंगे, अधिनियम, पुनर्गठन। क्या है रियासतों मतलब राज्य, राज्य की पुनर्गठन अधिनियम। तंजीम जदीद यानी नया जो गठन होगा ना, कोई चीज़ नया अधिनियम तंजीम जदीद होगा तो क्या हो जाएगा, पुनर्गठन अधिनियम, राजकीय पुनर्गठन अधिनियम, राजकीय पुनर्गठन अधिनियम। चलिए आगे चलते हैं, खुफिया रायदही, खुफिया रायदही। देखिए आपको याद रखना, खुफिया माने पोशीदा होता है, क्या कहता है, पोशीदा, और राय मतलब मशवरा, उसी राय को हम मतदान कहते हैं हिंदी में। दही मतलब करना, देना, खुफिया दही, खुफिया राय दही मतलब गुप्त मतदान करना, गुप्त मतदान। राय मतलब मतदान, कहते ना मतदान कर रहा है मतलब अपनी राय दे रहा है कि किसकी सरकार बनानी है, तो अगर वो खुफिया रखना है तो खुफिया राय दही मतदान, गुप्त मतदान करना, गुप्त मतदान करना। क्या है साथियों, गुप्त मतदान करना। चलिए आगे चलते हैं, जानशी। क्या है साथियों, जानशी, जानशी मतलब क्या होगा, उत्तर अधिकारी। जानशी मतलब उत्तर अधिकारी, जानशी मतलब उत्तर अधिकारी। चलिए आगे चलते हैं, आरजी। क्या है साथियों, आरजी, हम कहते हैं ना आरजी तौर पे किसी को बहाल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आरजी तौर पे हमने ये काम कर रहे हैं, मुस्तकिल मेरा ये नहीं है, मैं आरजी तौर पे यूट्यूब चला रहा हूँ। तो क्या है, अस्थाई नहीं है बल्कि अस्थाई। आरजी मतलब अस्थाई। इसी अगर ऐसा ही अगर मुस्तकिल होता, क्या होता साथियों, मुस्तकिल होता, तो इसे क्या कहते हैं हम, अस्थाई। क्या कहते हैं इसको हम, अस्थाई, इसको क्या कहते हैं, अस्थाई। अगर आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पे होता तो वो अस्थाई होता है, और जो आर्जी तौर पे होता है वो अस्थाई होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, फरीक़ मुक़द्दमा। क्या है साथियों, फरीक़ मुक़द्दमा, फरीक़ मुक़द्दमा, इसको याद रखिएगा, फरीक़ मुक़द्दमा। क्या है, फरीक़ मुक़द्दमा, इसी को वाद करता, वाद करता, मुक़द्दमा करना बनी वाद करता, फरीक़ मुक़द्दमा, जिसने मुक़द्दमा दायर किया है, फरीक़ मुक़द्दमा मतलब वाद करता। चलिए आगे है, मुअत्तला, मुअत्तल करना, मुअत्तल करना मतलब निलंबन करना, निलंबन करना, मुअत्तल करना मतलब निलंबन करना, मुअत्तल करना मतलब निलंबन करना, निलंबन करना। चलिए अब है मुनासिब। मुनासिब को हिंदी में हम क्या कहेंगे, समुचित, समुचित यानी समुचित यानी मुनासिब।
क्या है, मुनासिब, समुचित। मुनासिब को क्या कहेंगे हम, समुचित। चलिए आगे चलते हैं। कानून साज असेंबली, क्या है साथियों, कानून साज असेंबली, क्या है, कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली को क्या कहेंगे, विधान सभा, विधान सभा, विधान सभा। कानून असेंबली को कहेंगे विधान सभा। चलिए आगे है मजाज किया जाना, क्या है साथियों, मजाज किया जाना। मजाज किया जाना को हम हिंदी में क्या कहेंगे, पराधिकृत करना, क्या है साथियों, पराधिकृत करना, पराधिकृत करना। मजाज किया जाना कहते हैं हम इस काम के लिए फला कर्मी को पराधिकृत किया है। किसी चीज़ को लाने के लिए हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को भेजते हैं तो एक पराधिकृत पत्र उसको दे देते हैं कि इस काम के लिए फलां बाबू को पराधिकृत किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल ऑफिस में इस्तेमाल, कार्यालय में, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को मैं चुन चुन करके लाया हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, आप कामयाब हो जाएंगे, हमारी खुशी इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागहानी हालत, क्या है साथियों, नागहानी हालत अक्सर व बेशतर इसमें ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। उसी नागहानी हालत को क्या कहेंगे, आपातकालीन। आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह में लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की, मतलब नागहानी हालत में वो खिड़की को आप इस्तेमाल करके निकल सकते हैं बाहर। चलिए आगे है तशरीह वजाहत, क्या है, तशरीह वजाहत। उसी को स्पष्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अब फलां कर्मी के खिलाफ स्पष्टीकरण निकलता है तो मतलब ये कहता है कोई वो ऐसा काम किया है जिसके लिए विभाग जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, स्पष्टीकरण दीजिए आप। स्पष्टीकरण अगर सही में उसका सही रहता है तो कोई बात नहीं, उसको मामला को वहीं स्थगित किया जाता है, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। चलिए देखिए आगे है धमाका खेज अशिया, क्या है साथियों, धमाका खेज अशिया, क्या है, धमाका खेज अशिया। विस्फोटक, क्या है, उसी को क्या कहेंगे, विस्फोटक। धमाका खेज अशिया को क्या कहेंगे हिंदी में, विस्फोटक। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मुल्क बदरी, मुल्क बदरी, क्या है साथियों, मुल्क बदरी मतलब निष्कासन। मुल्क बदरी मतलब कहते हैं ना शहर बदर कर देना, शहर से निकाल देना। मुल्क बदर कर देना मतलब मुल्क से निकाल देना। तो ये है निष्कासन। हिंदी में क्या कहेंगे उसे, मुल्क बदरी को निष्कासन। चलिए उम्मीद कि आप अच्छी तरीके से इस क्लास को किए होंगे और अच्छे तरीके से इस जो कुछ भी मैंने आपके सामने पढ़ाया है उसको याद रखिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम में आप प्रदर्शन करना आपका काम है। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।